हाँ जी, ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਇਹ 2 ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਬੋਲੇ 'ਚ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੱਸਣ ਨਵੀਂ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਫਾਰਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ। ਸੋ y ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4ax। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਫਾਰਮ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ 0 0 ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ a 0 ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਸੀਗੀ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ -a, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ a, 2a ਤਾਂ a, -2a। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰਾਬੋਲੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ y ਸਕੁਏਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -ax ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -x ਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਿਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਸਿਸ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਐਕਸਿਸ x ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ x ਐਕਸਿਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲੋ, 0 ਨੇ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਰਟੈਕਸ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੋਕਸ ਇਨਸਾਈਡ a ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਈਡ a ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, -a, 0, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਫ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿੰਨਾ ਫੋਕਸ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਓਨੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਉਹ 'ਚ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ -a ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਆ ਜਾਏਗੀ। ਵਰਟੈਕਸ 0 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਉਹ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਆ ਗਈ। ਵਰਟੈਕਸ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਵਰਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 0 0 ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਫਟਾਫਟ ਦੱਬ ਕੇ, ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਸੀ, ਵਰਟੈਕਸ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਸੀ, ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਗਈ। ਚੌਥੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -a। ਤਾਂ ਅਗਰ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ -a ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ y ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -4a, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -a, ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ +-2a ਹੀ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ -a ਇਸ ਤਰਫ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ l ਡੈਸ਼ ਹੈ, l ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਆਹ l ਡੈਸ਼ ਆਹ, ਤਾਂ l ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੋਏ -a ਇਸ ਤਰਫ ਗਏ, 2a ਹਾਈਟ ਅਟੇਨ ਕੀਤੀ। l ਡੈਸ਼ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ, 2a ਡੈਪਥ ਅਟੇਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ l ਡੈਸ਼ ਨਿਕਾਲੋਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 4a ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫਰਕ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਫੋਕਸ, ਵਰਟੈਕਸ 1, ਫੋਕਸ 2, ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ 3, l ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ 4, l ਦੀ ਲੈਂਥ 5, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਿਸ 6। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਫੋਕਲ ਉਹ x+a ਸੀ, ਇਹ a-x ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ x+a ਸੀ, a-x ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਫਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ x ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4ay। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ x ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ y, ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4ax, ਤਾਂ ਅਬਾਊਟ x ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਬਾਊਟ y ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਬਾਊਟ y ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ x ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4ay ਅਬਾਊਟ y ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਰਟੈਕਸ ਉਰੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਵਰਟੈਕਸ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਵਰਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ 0 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਟੈਕਸ ਫਿਨਿਸ਼। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਕਸ। ਫੋਕਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ a ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ 0, a ਆ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ x ਹੈ ਨਹੀਂ, y ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਏ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ 0, ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ a, 0 ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਨੀਚੇ ਓਨੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾइन है ये y इज इक्वल टू a है, ठीक है जी। उन्नी दूरी ते नीचे जी लाइन है एनी लाइन पैरेलल आ y इज इक्वल टू 0 है, तो y जे नीचे ए डिस्टेंस ते जाऊगी तो y इक्वल टू माइनस ए होगी। सो ये स्ट्रेट लाइन दी चीज़ां काम आनियां तुहानूं हुण। y इक्वल टू माइनस ए तुहाडी डायरैक्ट्रिक्स है। पहला वर्टेक्स हो गया, दूजा फोकस हो गया, तीजा डायरैक्ट्रिक्स हो गया। चौथा पॉइंट हुंदा एल दे कोआर्डीनेट्स ते एल डैश दे कोआर्डीनेट। सो इस तरफ एल लिख लो, इस तरफ एल डैश लिख लो। सो एल दे कोआर्डीनेट्स किवें करने ने? पैराबोला जिहड़ा तुहाडा है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, इनू किहड़ी लाइन कट रही है? y इज इक्वल टू a कट रही है। सो इसदा मतलब जिहड़ा तुहाडा 4ay है, 4a इंटू a कर लिए 4a स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। सो प्लस माइनस 2a हो गया तुहाडे कोल। सो अगर प्लस माइनस 2a हो गया तुहाडे कोल तो आ वाली चीज़ होगी। तो यदा मतलब तुसी हुण जे ध्यान नाल देखिए तो आ एल है, एल का मतलब की होया? एल का मतलब होया 2a पॉजिटिव मैं इस तरफ गया, यही होया ना, ये ओरिजिन है। 2a पॉजिटिव इस तरफ गया, हाइट मैं a ले ली, ठीक है जी। उस तो बाद एल डैश का मतलब, एल डैश का मतलब मैं 2a नैगेटिव इस तरफ गया, हाइट मैं फिर a ले ली। तो जे ਇਹਦਾ मतलब तुसी 5वें नंबर ते एल डैश कढ़ाओगे तो बिल्कुल 2a प्लस 2a का स्केयर हो जाएगा, ठीक है जी। a माइनस a का स्केयर हो जाएगा, तो स्टिल एल डैश भी 4a ही रही। और हमेशा सारे पैराबोलियां दे विच जिहड़ी लेंथ हैगी है वो फिक्स ही रहनी है तुहाडे कोल। सो ये वाली चीज़ भी साडी जिहड़ी होगी। हाँ जी, वर्टेक्स साडा हो गया, फोकस साडा हो गया, डायरैक्ट्रिक्स साडी होगी, तुहाडे पास लेंथ साडी होगी। तो एक लास्ट चीज़ जिहड़ी रह गई वो इहदे विच हुंदा डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, फोकल डिस्टेंस, ठीक है जी। फोकस जिथे लिया उहदा किसी एनी पॉइंट तो डिस्टेंस। सपोज मैं जिहड़ा हैगा है मेरे पास जिहड़ा है तुहाडे कोल आ लै ला मैं पॉइंट पी एक्स वाई, तो मैं इनू ज्वाइन करदा फोकस तो ये एस है। तो मेरा पी एस है जो वो फोकस डिस्टेंस है, तो वो की होगा एक्स माइनस 0 का स्केयर, ठीक है, क्योंकि ए जीरो है ना, तो फिर जो 0 ए है सॉरी, तो वाई माइनस ए का स्केयर विद इन रूट, तो बन गया एक्स स्केयर प्लस वाई माइनस ए का स्केयर विद इन रूट। अब एक्स स्केयर की थां ते तुसी 4ay पुट कर सकते हो, हाँ जी। तो वाई माइनस ए का स्केयर, अब 4a ऐड हो गया, माइनस 2a ने प्लस 2a बन जाना, सो ਇਹਦਾ स्केयर आ जाना, तो अल्टीमेटली वाई प्लस ए आ जाना। तो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो पी एस की वैल्यू हैगी है तुहाडे कोल वाई प्लस ए, तो यदा मतलब तुसी 6वें नंबर पर जो वैल्यू निकाली वाई प्लस ए। सो आ 6 पैरामीटर्स हैं जोड़े तुहाडे कोल तुहानूं हर पैराबोला दे याद होने चाहिए ने। और जे पैरामीटर्स तुहानूं याद हैं तो तुसी बड़े आराम नाल जिहड़ा हैगा क्वेश्चनस जिहड़ा होर पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है जी। सो ये मतलब पहले नंबर वाला पैराबोला स्टैंडर्ड, दूजा उसे दा नैगेटिव। हुण इनू स्टैंडर्ड मान लिया तो जिहड़ा चौथा होएगा वो इसे दा नैगेटिव होएगा। ਇਹਦਾ मतलब जे तुसी 4 नंबर बनाना होवे तो तुहाडे कोल की ऑप्शंस रहणगियां। तो पैराबोला नंबर 4 जिहड़ा बनेगा वो बनेगा एक्स स्केयर इज इक्वल टू नैगेटिव ए वाई। सो इनू असीं डाउनवर्ड पैराबोला कहने हैं, पहले वाला अपवर्ड सीगा वो डाउनवर्ड सीगा, सो ये डाउनवर्ड पैराबोला हैगा। सो जे डाउनवर्ड पैराबोला हैगा है तो फिर गल तो फिर उत्थे ही आ गई, ਇੱਥੇ 0 ਮਾਈਨਸ ए आ जाए, पहला तो वर्टेक्स की गल आती है। सो वर्टेक्स 0 0 आ जाएगा, ठीक है जी। सो टेबल बना के याद करने की ज़रूरत नहीं जी, ये अपने आप ही याद हो जाते हैं तुहाडे कोल। सो इस चीज़ का आपां ख्याल रखना। तो वर्टेक्स तुहाडा 0 0 आ गया जी। वर्टेक्स तो बाद जिहड़ा तुहाडा दूसरा हैगा है तो जिन्होंने तुसी फोकस कहते सी, सो फोकस की वैल्यू हुण तुसी देखो की है, 0 नीचे नूं आ गए, सो नैगेटिव ए आ गया, तो फोकस भी थोड़ा आराम ना समझ आ गया। हुण जिन्नी दूरी ते फोकस है उन्नी दूरी ते ही तुसी उपर रहना है, तो उपर रहना ਇਹਦਾ मतलब y इज इक्वल टू a। तीजे नंबर ते ये थोड़ा डायरैक्ट्रिक्स आ गया, ठीक है जी। सो डायरैक्ट्रिक्स भी सानू पता लग गया तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण तुहाडे कोल अगला डायरैक्ट्रिक्स तो बाद की आंदा हैगा, एक्सिस तो सबनों ही पता होंदी है, ये वाई इज इक्वल टू 0 ही है। जे एक्स वाई एक्सिस है तो एक्स इज इक्वल टू 0 रहेगी, क्योंकि वाई एक्सिस है यदि एक्सिस, तो एक्स इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है।
अब x इज इक्वल टू ए हो गया। हुण लेटस रैक्टम का इत्थे l लिख लीए, इत्थे l डैश लिख लीए। इस लाइन का नाम y इक्वल टू माइनस ए है, तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4ay है। इनू आ लाइन कट रही है, सो इत्थे -4a, इत्थे -a, सो एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4a स्केयर, एक्स इज इक्वल टू +-2a। सो एक्स की वैल्यू +-2a आ गई। अब +-2a आ गई तो यह मतलब इधर नूं +2a चलूगा तो l की आ जाऊगा, l आ जाऊगा +2a, क्योंकि उधर नूं नीचे नूं तुसीं डाउन आए हो तो -a। इस तरह l डैश तुसीं उधर नूं गए तो -2a गए, आए तुसीं फिर भी डाउन ही हो, तो फिर तुसीं l डैश कड्डोगे, l डैश तुहाडी 4a ही आनी है। तो जे तुसीं तुहाडे पास वो वाला करोगे फोकल डिस्टेंस, सो फोकल डिस्टेंस जोड़ा है थोड़ा ए -y आएगा। तो ये सारिया पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो मतलब एक पैराबोला है, वो 5-5 6-6 पैरामीटरस है ने, और वो सारे पैरामीटरस जोड़े है ने तुहाडे कोल, वो मैं तुहानूं जेह्ड़े दोनों वीडियोज़ दे विच फुली एक्सप्लेन करते तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो पैराबोला दा जिहड़ा हैगा इहदा बेसिक इंट्रोडक्शन तो हुण खत्म हो गई तुहाडे कोल। हुण आपां क्वेश्चन देखिए, ठीक है जी। सो इस तरह का क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो भी एक डिस्कस कर दिता सीगा, पर हुण चलो आप सारे जिहड़े ऑफिशियली जो NCERT टाइप क्वेश्चनस ने तुहाडे कोल आपां वो लै रहे हैं तुहाडे कोल। तो अगर आपां नूं कहा कहंदा विच ऑफ द पैराबोला फाइंड, कहंदा फ्रॉम द फॉलोइंग पैराबोला फाइंड द कोआर्डीनेट्स ऑफ फोकाई, ठीक है जी। सो कोआर्डीनेट्स ऑफ तुसीं फोकाई लैणे ने तुहाडे कोल, ठीक है। उस तो बाद वो की कह रहा हैगा द इक्वेशन ऑफ डायरैक्ट्रिक्स द लेंथ ऑफ लेटस रैक्टम, ठीक है जी। ये सारिया चीज़ां आपां फाइंड करनियां ने, ठीक है जी। पहले नंबर ते फोकाई, दूजे ते इक्वेशन, तीजे ते लेंथ ऑफ लेटस रैक्टम, ठीक है जी। सो अगर मैं पहले पैराबोले नूं कंपेयर करा तो इन्हें कंपेयर होना वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax, तो 4a की वैल्यू कितनी आ गई 8, सो a की वैल्यू की 2 आ गई। तो पहले पार्ट की जो पहला वाला पार्ट है ये है y इज इक्वल टू अबाउट x है ना तुहाडे पास, सो ये इदां दा पैराबोला सीगा। सो इदां दे नूं सोच के तुसीं याद कर लेना है। तो जे इहदी फोकस की गल करिए तो फोकस इहदा A0 सी, तो यदा मतलब तुहाडा 2 0 बन जूगा फोकस। जो दूसरे ते इहदी गल करिए तुहाडे पास फोकस तो बाद आपां वारी आई तुहाडे कोल, उसने की पूछा कोआर्डीनेट्स ऑफ फोकाई पूछ लिया, द इक्वेशन ऑफ डायरैक्ट्रिक्स। सो डायरैक्ट्रिक्स तुहाडा जिहड़ा सीगा तुहाडे कोल वो सीगा, क्योंकि डायरैक्ट्रिक्स इधर बनना है तो x इक्वल टू -a, सो यदा मतलब x इक्वल टू -2। तीजे नंबर ते लेंथ ऑफ लेटस रैक्टम, सो लेंथ ऑफ लेटस रैक्टम LR लिख लिए, लेंथ लेटस रैक्टम लेंथ ये 4 × a है, सो 4 × a 2 आ गया, सो ये 8 आ गया। तो पहले पार्ट के 3 पार्ट सीगे जी तुहाडे पास, वो सारे आपां ने कर ले हैगे ने तुहाडे कोल, तो मेरा ख्याल है कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण आपां दूजा पार्ट पकड़ लिया तुहाडे कोल, ठीक है। दूसरा पार्ट हैगा जिहड़ा x स्केयर इज इक्वल टू 6y। मैं दोबारा कह रहा प्योर रट्टे नहीं लगने, एक्स तुसीं सिर्फ क्वेश्चन देखते ही ऐ समझ लो किदां दा पैराबोला, सवाल आपे याद आ जाएंगे। तो ये इदां दा पैराबोला है, जे इदां दा पैराबोला है तो फोकस इहदा उरे जाके हुंदा सी। तो पहला तो आपां करांगे x स्केयर इक्वल टू 4ay ना कंपेयर, सो 4a की वैल्यू 6, a की वैल्यू आ गई 3/2, सो ए की वैल्यू 3/2 आ गई। हुण पहला पैरामीटर इहदा फोकस है, जो आपां फोकस की गल करिए हुण तुसीं देखो उपर नूं a गया 0, आना हैगा तुहाडे कोल फोकस, सो इसदा मतलब 0 3/2, क्योंकि डायग्राम देख देख के आपां नूं समझ आई जाता। दूजा डायरैक्ट्रिक्स है, डायरैक्ट्रिक्स सी ए तो आ दूरी नीचे, तो y इज इक्वल टू a सी, नैगेटिव a सी, सो y इज इक्वल टू नैगेटिव a आएगी, सो y इज इक्वल टू -3/2 आ जाएगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो जिहड़ी हैगी ये चीज़ भी होगी तुहाडे कोल, ठीक है। सो दूसरे क्वेश्चन के विच अपनी जिहड़ी हैगी है इक्वेशन होगी, तो तीजी लेंथ ऑफ लेटस रैक्टम सी, दूजा पार्ट भी हो गया। तीसरी लेंथ ऑफ लेटस रैक्टम सी, लेंथ लेटस रैक्टम की, ठीक है। तो वो 4 ही होंगी है हमेशा, सो 4 × 3/2, सो 6 आ जाएगा, यानी कि उरों ही चक्की जा सकती है। अगर ना पता लगे कुछ तो इतों आपां चुक सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर साडा 2 भी हो गया। हुण आपां क्वेश्चन नंबर 3 की गल करिए तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो अगर आपां क्वेश्चन नंबर 3 की गल करिए, मतलब आ समझ आ गई तो अद्धी NCERT तो होगी, समझ लो x इज इक्वल टू -12x। पहला देखो रफली किमें बनूगी, सो इस तरह बनूगी,
ठीक है जी। तो पहला पैरामीटर की मंगया हैगा उन्हें तुहाडे कोल, ठीक है, फोकाई, ठीक है, फोकाई फोकस ही है, फोकाई की तो लोड़ ही नहीं, एक होंगे दो इलिप्स तो उस होंगे तो फोकाई कहते। तो इस तरफ मैं -a,0 गया सीगा। तो पहला तो आप इनू कंपैरिजन करांगे y² इज इक्वल टू -4ax। सो -4a बराबर है -12। सो ए की वैल्यू 3 आ गई। तो जो 3 आ गई, फोकस जोड़ा है -a,0 है, तो ए की वैल्यू 3 आई हुई है। सो -3,0 अपना तीसरे केस विच जोड़ा है वो आ गया। ठीक है जी। उस तो बाद आपने डायरैक्टिस कढ़ना। डायरैक्टिस थोनों कहा सी इन्नी दूरी ते ही इधर हुंदा है, तो यदा मतलब x इज इक्वल टू ए होगा। सो जो डायरैक्ट्रिक्स होगा तुहाडे कोल वो x इज इक्वल टू ए होगा, x इज इक्वल टू 3 होगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो डायरैक्ट्रिक्स की वैल्यू भी x इज इक्वल टू 3 लभ गई तुहाडे कोल। ते लेंथ ऑफ लेटस रैक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रैक्टम मैंने LL डैश कटनी है। सो LL डैश हमेशा 4 ही होंगी है। सो 4 × 3 किया तो 12 यूनिट होगी, क्योंकि ये लेंथ हैगी तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। सो यदा मतलब है असी तीजा सवाल भी कर लिया। चौथा सवाल जोड़ा है तुहाडे पास x² इज इक्वल टू 16y। तो जो x² इक्वल टू 16y है तो किदा की होनी चाहिए, x² इज इक्वल टू तुहाडे कोल 4ay। तो यदा मतलब ए वाला जोड़ा है अबाउट y बनना चाहिए अपवर्ड पैराबोला। सो यदा मतलब 4a की वैल्यू 16 आ गई तो ए की वैल्यू 4 आ गई। हाँ जी, ए की वैल्यू 4 मिल गई जी तुहानू। ठीक है। तो हुण जे तुसीं इहदी डायग्राम तुहानू याद होवे, तुसीं इहनू 0a कहा सी, तो जिहड़ा फोकस है अगले नू सारी जनरल डायग्राम उत्थे बना के दिखा दो रफली। फोकस जोड़ा है थोड़ा 0,a है, तो ए कितना कढ़िया होया तुसीं आ सो 0,4। फोकस तो बाद उन्नी दूरी ते डायरैक्टिक्स हुंदा। फोकस सीगा y इक्वल टू ए, डायरैक्टिक्स होगा y इक्वल टू -a। इदा याद करना बहुत ही सौखा होंदा। डायरैक्टिक्स y इज इक्वल टू -a। सो y इज इक्वल टू -a जोड़ा है, तो माइनस जोड़ा है तुहाडे कोल वो 4 हो गया तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो y इज इक्वल टू -4 हो गया तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो डायरैक्ट्रिक्स की वैल्यू भी आपां नूं पता लग गई तुहाडे कोल जिहड़ी हैगी है x² इक्वल टू 4ay सी ना, 4ay सीगा तो उत्ते होगा तो -6 आऊगी श्योरली। ठीक है जी। तुहाडे पास ये फोकस है 0, नहीं मैं जिहड़ा है क्वेश्चन मैं लास्ट क्वेश्चन x² इज इक्वल टू 16y ही लिखा है तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। सो असल बुक में -16 है ना, फिर आंसर का चक्कर पैदा, कोई गल नहीं, आप -16 वाला भी कर लेंगे। सो ये वाली चीज़ होगी जी तुहाडे कोल। डायरैक्ट्रिक्स हो गया, मैं ताई क्या आंसर नहीं रेडी करता। सो लेटेस्ट रैक्टम जोड़ा है वो तो 4a ही आना। सो 4 × 4 तो 16 आ जाना। ठीक है। सो ये वाली चीज़ होगी जी। तो जो बुक विच आ वाला क्वेश्चन सीगा वो वाला बुक विच क्वेश्चन उसने जोड़ा है तुहाडे कोल, मैं दोबारा कर देना जी। उन्हें y² इज इक्वल टू -16y लिखा। तो मैं स्टेटमेंट उतारन लगे थोड़ी जी, सॉरी ये तो गलत हो गया। x² इज इक्वल टू -16y। सो ये भी कोई बहुत ही लंबी चौड़ी गलबात है नहीं। अगर x² इक्वल टू -16y हो गई तो फिर तुसी पैराबोला नैगेटिव है डाउनवर्ड पैराबोला बना लोगे। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ क्या ਹੁੰਦਾ 0 ਨਾਲ -a। तो जब इनू कंपेयर करोगे -4ay, सो 4a नेगेटिव बराबर है -16 है। सो ए की वैल्यू तो 4 ही आनी है। तो अगर फोकस की गल करिए 0, -a, सो 0, -4 तुहाडा फोकस आ जाएगा। अगर डायरैक्टिक्स देखिए उन्नी दूरी ते ही उत्ते होंदी है, तो यदा मतलब ए y इज इक्वल टू ए आ जाएगी। सो y इज इक्वल टू ए का मतलब है y इज इक्वल टू 4 तो डायरैक्टिक्स आ गई। तो जी लेंथ ऑफ लेटस रैक्टम है वो ऑलवेज 4 है, एब्सोलूट है 4 4 तो 16 आ गई तुहाडे पास लेंथ ऑफ लेटस रैक्टम। ठीक है जी। सो ये नाल तुहाडी जिहड़ी है तुहाडी बेसिक इंट्रोडक्शन की हो गया पैराबोला, तो पैराबोला के सारे पैरामीटर्स तुहानू निकालने आ गए हैं जी तुहाडे को। ठीक है जी। अगले लैक्चर दे विच अगर ये अगले लैक्चर च मैं एडिशनल जेई टाइप क्वेश्चन चकूँगा कि पैराबोला जो स्टैंडर्ड ना होवे तो की होएगा। ये 11th क्लास है, स्टैंडर्ड ही मिलना है, बट जो स्टैंडर्ड ना होवे तो क्या पॉसिबिलिटी, आप नैक्सट लैक्चर डिस्कस करते हैं। थैंक यू।